if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the. Watch the vlog till end because there are some good travel tips and the immigration check questions which I came across at the airport. So watch the vlog till end. So this is my second flight and I finally made it here. But seriously gonna tell you guys, 90 minutes layover is way less. Like अगर आपको 90 मिनट से ज़्यादा layover मिलता है तो please opt for that. Literally I had to run to get here like within 20 minutes क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट थी वो थोड़ा लेट हो गई थी मैम. So guys, literally I had to run. Yeah, so I couldn't talk too much in that the earlier flight because it was at the morning. Also, I was just so much tired. Pardon my hair, please. Yeah, they are all just messed up. तो जो दुबई तक की जो फ़्लाइट थी वो स्मूथ थी. इट वॉज सो स्मूथ. आई रिकॉर्डेड सम ऑफ द स्टफ but couldn't record too much and couldn't talk actually there. I recorded too much there but couldn't talk at all because I just fell asleep for some time. Alright. तो जो दुबई तक की फ़्लाइट थी वो स्मूथ थी लेकिन जब दुबई से जो ये ग्लासगो वाली अब है, मैं ग्लासगो वाली में ही होगी, तो इसमें क्या हुआ मतलब कि वो लोग ना मतलब जैसे आप जब फ़्लाइट से आप वापस से एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक वो बस होती है वो लेके जाती है. ठीक है. तो उन्होंने वो बस पे पहले बिठाया. मतलब पहले तो ये लोग उसको बिज़नेस क्लास फिर जो इकोनॉमिक फ्लैक्स और मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो अपर क्लासेस होती हैं उनको ये लोग खाली करते हैं. फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्लास का. ऑलराइट. तो एक तो मेरी जो फ़्लाइट थी जो ये दुबई वाली ये एकदम कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, ऑन टाइम थी. एंड इसमें ज़रा सी भी देर हो जाती इट वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर मी बिकॉज फिर से वापस से लाइक बुक करनी पड़ जाती. फिर से वहाँ पर दुबई में मतलब लेओवर हो जाता है मेरा काफ़ी ज़्यादा. But hopefully nothing like that happened at all and it went very smooth. But भाई जो दौड़ना पड़ा ना बहुत बुरा दौड़ना पड़ा. मतलब I literally the moment I got off the bus I just ran towards the terminal where I have to catch the next flight. और मैंने मतलब एमिरेट्स वालों को तब फ़ोन करके पूछा था कि क्या वो पास में ही होगा टर्मिनल या कितना दूर होगा. उन्होंने हर बार बोला कि पास में ही होगा, इतना दूर नहीं होगा. बट इट वॉज रियली फार एंड आई हैड टू लाइक रन अ लॉट. ये फ़्लाइट भी बहुत लंबी है, 7-8 घंटे की फ़्लाइट है ये वाली. ठीक है. और भी चीज़ें बताता हूँ. बाकी आई एम सो मच एक्साइटेड, सो मच सो मच फीलिंग नर्वस. आई डोंट नो व्हाट टू से एल्स. लेट्स सी. Just see the scenario of outside. Dubai airport is really huge. Like it is really huge. But again मेरे को फिर से जो इस बार सीट मिली है उसके बिल्कुल बगल में विंग वो है. देखते हैं कैसे होता है यहाँ पर भी क्योंकि पिछली वाली में तो बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो गया था. आई होप आई गेट सम गुड शॉट्स. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden The food in this flight is better. I show you guys. So they give the fruits like sandwich, the yogurt, and that's not wine, that's an apple juice. So the food in this one was better. I'm just watching the I grew up in a vloggers. place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see, 'cause everybody Guys, I reached at the Glasgow and I reached the UK. The journey was very smooth,
though tiring at the same time, but it went very well. So the journey was very smooth, but it was tiring at the Dubai airport, as I told you earlier. But now I'm just going to the home. My aunt is coming. I'm gonna stay with her for some days. I'm gonna make some more vlogs. So stay tuned and subscribe to the channel. So guys, today is the, I don't know, it's been 1 week जबकि जो मेरे को यूके में आए हुए हो चुका है एट द क्लास को, एंड द वेदर इज़ सो मच लवली हेयर। एक जो चीज़ मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी है वो ये है कि लाइक जो रात है वो 9 बजे होती है। लाइक अभी हो रहा है 8 इन द नाइट, एंड यू जस्ट गाइस सी द व्यू ऑफ द आउटसाइड। आई एम गोना शो यू। As you can see that it is right now 8 or 8 in the night. एकदम उजाला हो रखा है, ठीक है। इट्स क्वाइट अमेजिंग हियर, बट सर्दियों में वापस से टाइम ड्रॉप हो जाता है। ग्लासगो में थोड़ा ठंड है स्कॉटलैंड में। लाइक जो फर्स्ट 2 डेज़ था उसमें मेरे को काफ़ी थोड़ा सर्दी लगा, बट इवेंचुअली अब मेरे को एकदम नॉर्मल लग रहा है। ओके, सो कीपिंग दैट थिंग्स अपार्ट, इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि विच आई केम अक्रॉस एट द एयरपोर्ट। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ रहने जा रहे हो। वहाँ का जो एड्रेस है बहुत अच्छे से एक तो याद कर लेना, और यू शुड हैव सम प्रूफ ऑल्सो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है तो आपको एक एग्रीमेंट मिला होगा। अपने प्राइवेट का ये तो आपको प्राइवेट का होगा। आप अगर किसी के यहाँ रहने जा रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो, लाइक काइंड ऑफ कि व्हाट द पर्सन डूज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दूसरा कि अपना जो पासपोर्ट है वो चेक करना कि वो वैलिड होना चाहिए फॉर द एंटायर ईयर ऑफ योर कोर्स। ओके, क्योंकि एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक स्टूडेंट थी और उसका जो पासपोर्ट था वो 3 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो रहा था, तो उसको वहीं पर रोक लिया था। आई डोंट नो उसने उसके साथ क्या हुआ, बट क्योंकि मेरे तो इमिग्रेशन चेक क्वेश्चन जल्दी हो गए थे। ओके, तो मेरे से वैसे एक्सेस कुछ ज़्यादा पूछा नहीं इमिग्रेशन चेक के बारे में, बट दे वर आस्किंग अदर स्टूडेंट्स अ लॉट। ओके, सो अपना जो पासपोर्ट है कि मेन चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि इतना जो पासपोर्ट है जस्ट उसको ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी एक्सपायरिंग। ओके, there's nothing much to say because everything will be smooth. Just be conscious and be active throughout the journey, and have a safe trip, have a safe journey to whichever part you are going. Yeah, please tell me in the comments that where you are going actually in the UK, because I was thinking to make separate groups for the for England and for the Scotland students, where we can just talk about the part-time jobs and all. Okay, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं सारे जितने भी वो ग्रुप्स के जो लिंक होंगे वो अपने स्टोरीज़ के थ्रू शेयर करूँगा, और जो अपकमिंग व्लॉग्स होंगे वो भी आप लोगों को उसी के थ्रू पता चलता रहेगा। सो दैट इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विद एवरीवन who is coming to the UK. Okay, and yeah, follow me on the Instagram. I see you later. Bye.